Hello students, welcome to Gyanbanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our chapter number 5 Social and Political Life, and we have discussed about some interesting point related to chapter. And in the today's lecture we will move further in the chapter and we will learn about PIL, Public Interest Litigation. So let's get start the topic. So first of all, let's learn about public interest litigation, PIL. So what is the meaning of PIL? So for the knowing of meaning PIL, you have to open your supplementary book page number 25 SB25. ओपन योर SB25 एंड यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिल रही है कि व्हाट इज PIL. So the PIL was introduced by the Supreme Court with the objective of making the legal system accessible to all. It allows any individual or organization to file a petition to the Supreme Court, to the High Court, seeking justice on any issue concerning the larger public interest. This can be done even through a letter addressed to the courts. Means PIL क्या है? PIL एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक सिस्टम है जिसमें मेनली सभी को आसानी से एसेसेबल मीन्स सभी को आसानी से ये जो सिस्टम है ये अवेलेबल हो जाए, जुडिशरी सिस्टम सभी के लिए एसेसेबल हो, इसी के कारण PIL को इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड इट अलाउस एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. PIL हमें अलाउ करता है कि हम एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में एंटर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं. सो टू फाइल अ पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एंड सीकिंग जस्टिस ऑन एनी इश्यू कंसर्निंग द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. और कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो इसके ऊपर हम PIL फाइल कर सकते हैं. सो दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ PIL. So then let's move to practice question 17.1. So fill in the table given below. So first point, uh, in this question we can see that there are two boxes. First box is related to challenge in assessing courts, and second box is about how the PIL addresses this challenge. So first point, legal procedures cost a lot of money which makes them unaffordable for the poor. So how the PIL addresses this challenge? So it simplified the legal process, reducing the cost. Also any individual or organization could now appeal on behalf of another person whose rights were being violated. This made justice more accessible and affordable to the poor. मीन्स फर्स्ट पॉइंट है कि जो आज की हमारी लीगल प्रोसीजर है इसका जो कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है. इट इज़ अनएफोर्डेबल फॉर द पुअर पर्सन. तो PIL हम किस तरीके से फाइल करेंगे? PIL हम कहेंगे कि इट सिंप्लीफाइड द लीगल प्रोसेस रिड्यूसिंग द कॉस्ट. हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम पिटिशन फाइल करेंगे कि लीगल प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए. ऑल्सो any individual or organization could now appeal on behalf of another person whose rights were being violated. कोई एक पर्सन है जो पुअर है बट उसके बिहाफ में उसकी अपील को कोई एक अदर इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपील करेगा. तो इससे भी क्या होगा? दिस मेड जस्टिस मोर एसेसेबल एंड एफोर्डेबल टू पुअर. पुअर पर्सन कोई ज़्यादा कॉस्ट अफोर्ड उसको नहीं होगा. सो कोई एक अदर पर्सन है, कोई एक अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके बिहाफ में केस लड़ेगा, उसके राइट्स के लिए काम करेगा. सो दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ PIL. Second point, legal procedures involve a lot of paperwork.
which makes it difficult for illiterate people to file cases or make appeals. सेकेंड पर्पस ये है कि लीगल प्रोसीजर जो कोर्ट में होती है यहाँ पर पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स ये इलिटरेट जो भी कोई अनएजुकेटेड पीपल है इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा इस केसेस को समझना और उसको फाइल करना। So under the PIL system, even a letter or a telegram addressed to the Supreme Court or High Court could be treated as PIL. तो PIL में कोई ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, हम एक सिंगल लेटर और टेलीग्राम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पहुंचा के हमारी PIL फाइल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लीगल प्रोसीजर्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर डेली वेज अर्नर्स टू परस्यू देयर केसेस। तो हम सब जानते हैं कि जो लीगल प्रोसीजर होती है कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन केस। तो इससे क्या होगा कि डेली वेज अर्नर से ये अपने केस को परस्यू कर जाएंगे। सो लीगल प्रोसेस वॉज सिंप्लीफाइड, कोर्ट ट्रायल्स वर फास्टर. Also, since any individual or organization could now appeal on behalf of another person, daily wage earners did not have to go courts to appeal for themselves. Means प्रॉब्लम क्या थी कि ज़्यादा टाइम लगता है और जो डेली वेज अर्नर्स है इसको अपना केस परस्यू करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो उसका आंसर ये है कि लीगल प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है थ्रू द PIL एंड कोर्ट ट्रायल्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो ज़्यादा कोई भी केस का रिजल्ट फास्टली देखने को मिलेगा। सिंस एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कुड नाउ अपील ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, मीन्स कोई पुअर पर्सन है तो उसके बिहाफ पे कोई इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन केस लड़ सकता है। एंड डेली एज वेज अर्नर्स डिड नॉट हैव टू गो टू कोर्ट्स टू अपील फॉर देमसेल्व्स। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा कि डेली एज वेज वन अर्नर्स है ये अपने केस को परस्यू कर सकते हैं आसानी से। Then let's move to practice question 18.1. So match the PIL cases with the problems highlighted by them. So first, People's Union for Civil Liberties versus Union of India 2001 case. ये केस इससे रिलेटेड है लाइक राइट टू फूड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। सो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वीएस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस किससे रिलेटेड है? राइट टू फूड इससे रिलेटेड है कि ये एक इसेंशियल पार्ट है हमारी राइट टू लाइफ का। सेकेंड केस हुसैन आरा खतून वीएस स्टेट ऑफ बिहार 1979. So it is related to delay in trials violates a person's right to life and personal liberty. मीन्स जो डिले होता है केसेस काफ़ी ज़्यादा समय तक चलते हैं, इससे पर्सन के राइट का वायलेशन भी होता है। थर्ड केस MC मेहता vs यूनियन ऑफ इंडिया 1986. So it is related to industrial pollution threatens the right to life. ये ऐसा कहता है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से हमारी लिबर्टी है, हमारी जो लाइफ है इसको काफ़ी थ्रेटन, उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। Then let's move to 18.1 and it is explain how the judgment on each of these cases helped in addressing the issue highlighted. So first, PUCL vs Union of India case. So the Supreme Court's judgment in the PUCL case legally recognized right to food as an essential part of right to life. By directing the government to provide more employment, food at cheaper prices through government ration shops and midday meals to children, the judgment legally acknowledged that it was the duty of the state to provide food for all. मीन्स PUCL vs यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस किसके रिलेटेड था? रिलेटेड टू राइट टू फूड एज इसेंशियल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। मीन्स सभी को
फूड अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए। सो इससे गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, सभी को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर प्रोवाइड करने का काम करेगी। फूड एट चीपर प्राइसेस थ्रू गवर्नमेंट रेशन शॉप्स, गवर्नमेंट रेशन शॉप से यहाँ से काफ़ी चीपर प्राइस में फूड प्रोवाइड करेगी। थर्ड पॉइंट, मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन, जो स्कूल में जो चिल्ड्रन होते हैं इसके लिए मिड डे मील्स प्रोवाइड करना। एंड जजमेंट लीगली एक्नोलेज दैट इट वाज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल। और इस जजमेंट से हमें ये पता चलता है कि ये एक स्टेट की ड्यूटी है कि सभी को फूड प्रोवाइड किया जाए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। Then second case it is Husainara Khatun vs State of Bihar. So the Supreme Court's judgment stated that a person's right to speedy trial is linked to his fundamental right to life and personal liberty, and made it compulsory for the state to provide free legal aid to the all under trials. This case also marked the beginning of the PIL system. हुसैनारा खातून vs स्टेट ऑफ बिहार, ये केस फास्ट जजमेंट के रिलेटेड है कि जो स्पीडी ट्रायल हो गए। हम देखते हैं कि कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इट इज़ रिलेटेड टू स्पीडी ट्रायल। यहाँ पर जल्दी से हमें रिजल्ट मिलेगा। एंड ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। सो दिस केस ऑल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ द PIL सिस्टम, और इससे ही धीरे धीरे PIL सिस्टम का स्टार्टिंग देखने को मिलता है। देन थर्ड केस MC मेहता vs यूनियन ऑफ इंडिया. So the Supreme Court's judgment ruled that the government should make laws regarding to the setting up and management of industries dealing with hazardous substances to ensure minimal risk to human life. It also held companies responsible for operation that threatened a citizen's right to life. MC मेहता vs यूनियन ऑफ इंडिया, हमने देखा था कि इस केस में जनरली पॉइंट यही था कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है ये हमारी ह्यूमन लाइफ को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। सो इसके लिए क्या करना होगा? सो इंडस्ट्रीज़ को ये इंश्योर करना होगा कि ये कम से कम इस हैजार्डियस सब्सटेंस का यूज़ करें और मिनिमल रिस्क हो टू द ह्यूमन लाइफ। एंड ये सभी इंडस्ट्रीज़ को एडवाइस भी देते हैं कि आप सभी को काफ़ी सोच समझकर कोई भी ऑपरेशन करना चाहिए। मीन्स आपको सिटीज़न की लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से आपको इंडस्ट्री को रन करना होगा। Then let's move to concept time 14. So it is justice delayed, justice denied. So courts in India often take a very long time to deliver their verdicts. As a result, justice loses its value for the appellants. Let's look at two examples to understand how justice delayed is justice denied. सो पॉइंट ये है कि जस्टिस मीन्स कोई न्याय है उसमें डिले होगा तो धीरे धीरे उसको गेट करने का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स डिले हो जाएगा तो जस्टिस डिनाई हो जाएगा, नहीं मिलेगा कोई भी पर्सन को प्रॉपरली जस्टिस। सो फर्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस। In 1984, poisonous methyl isocyanate gas leaked from the Union Carbide factory in Bhopal, causing the death of around 3,000 people and severe damage to the health of several others. Legal proceedings against Union Carbide started after the government passed the Bhopal Gas Leak Act in March 1985. The case went on for 25 years. The then chairman of the company was never prosecuted or convicted. In 2010, seven Indian employees of the company, all of whom were in the 70s by then, and were sentenced to the 2 years imprisonment for causing death by negligence.
Several victims are still waiting to receive their compensation even after so many years. So भोपाल गैस ट्रेजेडी केस 1984 में पॉइजनियस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल, और ये इंसिडेंट्स में टोटल 3000 पीपल की डेथ हो गई थी और कई सारे पर्सन को सीवियर डैमेज भी हुआ था। लोकल लीगल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हुई आफ्टर गवर्नमेंट पास द भोपाल गैस लीक एक्ट इन मार्च 1985, एंड ये केस टोटल 25 इयर्स तक चला। 2010 तक ये जो कंपनी है इसके चेयरमैन को कोई भी उसको सज़ा नहीं दी गई, नेवर प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड। इन 2010 7 इंडियन एम्प्लॉयज ऑफ द company, all of whom were in their 70s by then, were sentenced to 2 years imprisonment for causing death by negligence. Means 7 एम्प्लॉय को 2 साल की इम्प्रिजनमेंट मीन्स 2 साल के लिए जेल में भेजा गया, यही उसकी एक सज़ा थी। मीन्स हम देख सकते हैं कि एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। 3000 पीपल डाइड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी, बट उसके बावजूद उसके चेयरमैन है उसको कोई भी सज़ा नहीं दी गई, और ओनली 7 इंडियन एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ whom were in the 70s by then, were sentenced to 2 years imprisonment। सिर्फ 2 साल की जेल की सज़ा हुई। एंड सेवरल विक्टिम्स आर स्टिल वेटिंग टू रिसीव देयर कंपेंसेशन इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, और कई सारे विक्टिम्स है ये आज भी अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, कंपेंसेशन उसको कुछ मिले इसके लिए कोर्ट में जा रहे और कोर्ट में केस लड़ रहे। देन सेकंड केस इज अबाउट उफार सिनेमा फायर केस। इन 1997 a fire broke out at Ufar Cinema in Delhi during a show. 59 people died in asphyxiation, while 103 were seriously injured in the resulting stampede. The victims of the families of the deceased from the Association of Victims of Ufar Fire Tragedy and filed a civil compensation case against the theatre owners, Gopal and Sushil Ansal. The trials went on for 18 years. In 2015, the Supreme Court sentenced the Ansal brothers to 2-year jail term if they failed to pay the compensation to the families of the victims. The order was reviewed again in 2017 and Gopal Ansal was sentenced to a year in a jail. The other accused did not have to serve his sentence because of his old age. So, उफार सिनेमा फायर केस 1997 में उफार सिनेमा दिल्ली में एक फायर हुआ था। इसमें टोटल 59 पीपल की डेथ हुई थी और 103 सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। ये जो 103 इंजर्ड हो गए थे इसने एक केस चलाया था टुवार्ड्स उफार सिनेमा के जो ऑनर्स है उसके खिलाफ, बट टोटल 18 इयर्स तक ये केस चला। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अंसल ब्रदर्स को 2 साल की जेल की सज़ा होगी अगर ये कंपेंसेशन अपनी उसकी जो फैमिलीज है उसको पे ना कर पाए तो। देन ये केस को रिव्यू किया गया इन द 2017 एंड 2017 में गोपाल अंसल को 1 साल की जेल की सज़ा हुई, एंड जो दूसरा पर्सन था, दूसरा भाई था, उसको ओल्ड एज के कारण उसको कोई सज़ा नहीं हुई। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम केसेस को कंप्लीट होने के लिए लगता है, एंड इससे क्या होता है हम कह सकते हैं कि मेन हमारा जो टाइटल था कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस में डिले होगा तो जस्टिस डिनाई हो जाएगा, मीन्स उसका कोई महत्व, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। मीन्स ये सभी केसेस 1984 1997 में स्टार्ट हुए बट इसका रिजल्ट
2010 2015 में देखने को मिलता है, एंड प्रॉपर रिजल्ट तो देखने को नहीं मिलता। जैसे कि जो एक्ट हुआ है, जो भी कुछ काम हुआ है, इससे रिलेटेड कोई हमें सजा देखने को नहीं मिल रही। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। Then let's move to practice question 18.1. So read the textbook page number 62 of your NCERT textbook and express your opinion on the judgment given in the Olga Tallis vs Bombay Municipal Corporation case. So आपको NCERT textbook रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस केस के फीचर्स, केस के पॉइंट को स्टडी करते हैं. So I think the judgment given in Olga Tallis vs Bombay Municipal Corporation case is fair and just because the verdict upholds the fundamental right to life and states that livelihood is essential part of the fundamental right. And second, it prohibited the eviction of hawkers and slum dwellers by stating that it would deprive them of their livelihood, and the verdict thus delivered justice to petitioners. मीन्स बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस ओल्गा टेलीस केस ये है कि ये फंडामेंटल राइट के लिए काम करेगा. मीन्स जो वर्डिक हुआ ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ को सपोर्ट करता है. दैट्स वाई इट इज फेयर. एंड सेकेंड पॉइंट, it prohibited the eviction of hawkers and slum dwellers by stating that it would deprive them of their livelihood. ये hawkers और slum को prohibited करता है. And the verdict thus delivered justice to petitioner, और इससे हम कह सकते हैं कि जो पिटिशनर थे उसको एक प्रॉपर जस्टिस मिला फॉर दिस केस. So you have to directly answer the practice question 18.1. It is related to NCERT textbook. So that's why there is no need to write in your fair book. But इसका आंसर ये होगा. अगर आपको NCERT टेक्स्ट बुक में ये केस पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम. So this is about today's lecture. In this lecture we have discussed about PIL, public interest litigation. So I hope you understood very well about all the points related to this topic, and if you have any doubts regarding this topic you can ask me anytime. So by this video lecture we have completed our chapter number 5 judiciary and unit number 1 social and political life. In the next lecture we will start history unit number 2. So thank you for watching this video and have a nice day.